بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غازیان خان زادہ آج اس وقت شہر میں اپنے قائم کردہ کالج کے دورے پر تھا۔ وہ کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کا قائل نہ تھا۔ وہ اپنی بے انتہا مصروفیت کے باوجود اپنا ہر کام وہ توجہ سے کرتا تھا۔ غازیان خان زادہ کالی شلوار قمیض پر سکن کلر کی چادر کندھوں پر پھیلائے ہوئے تھا اور اپنے دونوں بازو پشت پر باندھے وہ گہری سنجیدگی سے اپنے ساتھ چلتی کالج کی پرنسپل کی باتیں سن رہا تھا، جس کے منہ سے کچھ زیادہ ہی چاپلوسی اور اپنے چھوٹے سے کیے کام کو بھی بڑھ چڑھ کر بیان کرنے کے جملے نکل رہے تھے۔ غازیان نے کچھ سال پہلے ہی اس عورت کو کالج کے پرنسپل کے طور پر چنا تھا۔ کسی حد تک غازیان اس پر بھروسہ بھی کرنے لگا تھا، کیونکہ کالج کا نظام اچھے سے چل رہا تھا۔ جو کمی غازیان محسوس کرتا تھا اس پر وہ سختی سے رد عمل ظاہر کرتا تھا۔ اس وقت بھی غازیان خان زادہ بات کرتے سیدھا پرنسپل آفس آیا تھا، لیکن پھر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا تو اس نے کچھ ضروری ہدایات پرنسپل کو دی، جس پر تابع داری سے اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ غازیان اپنی بات ختم کرتے وہاں سے نکلتا گیا۔ اب اسے آفس پہنچنا تھا۔ غازیان خان زادہ اپنے آفس میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ میں مگن تھا، جب اس کی سیکرٹری نے اسے باہر پولیس کے آنے کا بتایا۔ وہ کچھ تعجب کا شکار ہوا، اسے کہنے لگا کہ وہ پولیس افسر کو اندر بھیج دے۔ تبھی اسے پولیس افسر کی آمد کا مقصد معلوم ہونا تھا۔ آنے والا شہر کا ایس پی تھا، جو غازیان کے آفس میں آتا اسے سلام کرتا اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ جی فرمائیے ایس ایس صاحب، کیسے آنا ہوا؟ غازیان خان زادہ نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھ کر توجہ سامنے کی۔ اسے معاملہ کافی گہرا لگ رہا تھا۔ خان زادہ صاحب، مسئلہ کافی پیچیدہ ہے۔ اس میں چونکہ آپ کا بھی نام آ رہا ہے اور اب آپ کے خاندان اور آپ کا اس شہر میں ایک نام ہے، اس لیے میں نے کوئی پیش رفت کرنے سے پہلے آپ کے پاس آنا بہتر سمجھا۔ ایس ایس پی نے تمہید باندھی تو غازیان خان زادہ کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات آئے۔ جو بھی بات ہے پلیز کھل کر بیان کریں۔ غازیان کی سنجیدگی میں اضافہ ہونے لگا۔ دیکھیں غازیان صاحب، اس شہر میں بنائے آپ کے کالج میں کچھ غیر قانونی سرگرمیاں سرزد ہوتی نظر آئی ہیں۔ وہاں لڑکیوں میں نشاور ادویات کا استعمال اور لڑکیوں کی اسمگلنگ کا کام بھی ہو رہا ہے، اور ایسے ہو رہا ہے کہ آسانی سے کوئی بھی اس بارے میں جان نہیں سکتا۔ اس سب کے پیچھے آپ کی کالج کی موجودہ پرنسپل کا ہاتھ ہے۔ ایس ایس پی کی کئی باتیں غازیان خان زادہ کو ششدر کرنے لگی۔ آپ اس میں کتنا کام کر چکے ہیں ایس ایس صاحب، یا پھر یہ صرف آپ کے شکوک و شبہات ہیں؟ غازیان کو اس بات پر یقین کرنے میں تعمل تھا، اور پھر ایسے گناہ بھرے کام کے پیچھے کسی عورت کا ہونا شاید بہت زیادہ چھمبے کا باعث تھا۔ نہیں خان صاحب، صرف شک کی بنیاد پر میں نہیں آ سکتا آپ کے پاس۔ میں بس کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے سے پہلے آپ کے علم میں یہ سب لانا چاہتا تھا۔ اب آپ کا نام اور مقام معاشرے میں اچھلنے کا خطرہ بھی ہے۔ آپ شک کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ضروری اقدامات کرنے ہیں تو آ کر کر سکتے ہیں۔ پولیس افسر نے سبھاؤ سے سارا معاملہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ غازیان خان زادہ کے اندر طیش بھرے تاثرات ابھرنے لگے کہ وہ کالج کی پرنسپل کی چالاکی اور دو نمبری پہلے کیوں نہ جان پایا۔ اس پرنسپل نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ اس سے بھی نمٹنا خود چاہتا تھا، اس لیے اپنے سامنے بیٹھے ایس ایس پی سے اس نے کچھ وقت مانگ لیا۔ کالج کی پرنسپل نے اس کے قہر کو آواز دی ہے اور اس کے اصولوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اتنی آسانی سے اسے پولیس کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ اسے سزا دیتے بتائے گا کہ اس نے غازیان خان زادہ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اور غازیان کے ساتھ غلط کرنے والوں کا وہ کیا انجام کرتا ہے یہ صرف اس کو ہی پتا تھا۔ غازیان خان زادہ نے بہت سوچ و بچار کے بعد اپنے خاص ملازم کو پرنسپل کی بیٹی اغوا کر کے لانے کا حکم دیا۔ اس پرنسپل کو وہی تکلیف اور وہی درد دینا چاہتا تھا جو وہ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنے کالے کارناموں کے لیے استعمال کر کے دے رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی عورت ذات کو اپنی نفرت اور دشمنی میں استعمال نہ کیا، لیکن اس بار وہ غضب سے بھرا یہ فیصلہ کر گیا تھا۔ وہ صبح کے بعد سے آج اپنے جم روم میں موجود اپنے پنچنگ بیگ پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا جب اس کا ملازم بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ سائیں، آپ کے کہنے کے مطابق پرنسپل کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے، لیکن وہ کچھ بولنے کو ہی تیار نہیں۔ ملازم نے سر جھکائے کہا تو غازیان خان زادہ کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ آئی۔ ہاں اچھا، ایسا کرو، دو لیڈی گارڈ کو اس کے پاس بھیجو اور انہیں کہو کہ سارا سچ اگلوائے۔ ملازم غازیان خان زادہ کے حکم پر وہاں سے چلا گیا
اور پھر دو لیڈی گارڈ اس لڑکی کے پاس آتے ہی اسے ٹارچر کرنے لگے، لیکن اس سب کے باوجود وہ لڑکی کچھ بھی قبول کرنے کو تیار نہ ہوئی۔ تب غازیان خان زادہ غصے سے بھرا خود ٹارچر روم کی طرف آ گیا، لیکن جیسے ہی وہ اس لڑکی کی طرف آیا تو اسے دیکھتے ہی غازیان کو بہت عجیب لگا۔ اسے لگا کہ وہ سانس ہی نہ لے سکے گا۔ وہ لڑکی شدید زخمی حالت میں بڑی بری طرح سسک رہی تھی۔ وہ 16 سالہ معصوم گونگی لڑکی تھی۔ ڈیم اٹ، کھولو اسے! غازیان زور سے دھاڑا تو ملازم نے جھٹ آگے بڑھتے ہوئے لڑکی کو رسی سے بندھے ہاتھ کھولنے چاہے، لیکن غازیان خان زادہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ اس کا یہ عمل ملازم کے لیے کافی حیران کن تھا، اور جب غازیان خان زادہ نے وہاں کھڑی لیڈی گارڈ کو اس لڑکی کے ہاتھ کھولنے کو کہا تو زخمی لڑکی نے ہاتھ رسی کی قید سے آزاد ہونے کے باوجود اپنے سامنے دراز قامت شخص کو خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں دیکھا۔ لڑکی کو لگا کہ یہ کرخت تاثرات والا شخص اب تو اسے جان سے ہی مار دے گا، لیکن اگلا لمحہ اسے اپنی پوری آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ کچھ پل کو اپنے لولہان وجود کی تکلیف کو بھول بیٹھی تھی، کیونکہ غازیان خان زادہ نے لیڈی گارڈ کو اسے بازوں میں اٹھانے کا حکم دیا تھا اور اپنے پیچھے آنے کو کہا تھا۔ لیڈی گارڈ کے لیے اس 16 سالہ لڑکی کو اٹھانا مشکل بھی نہ تھا۔ غازیان آگے بڑھتے ہوئے اور ساتھ ساتھ تعصب سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس نے غصے میں ملازم سے پرنسپل کی بیٹی کی بابت جانتے سیدھا اغوا کا حکم کیوں دے دیا؟ اسے پہلے اس کی بیٹی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لینی چاہیے تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پرنسپل کی بیٹی کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ گونگی بھی ہے، اور یہ سب جاننے کے بعد غازیان خان زادہ پرنسپل کی طرح انسانیت سے نیچے تو نہیں گر سکتا تھا۔ لڑکی کو غازیان کے حکم پر ایک صاف ستھرے کمرے کے بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ لیڈی ڈاکٹر کمرے سے نکلتی چلی گئی، اور وہ لڑکی کچھ خوف اور کچھ حیرانگی بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب آتے غازیان کو بھی دیکھ رہی تھی، جس کے ساتھ وہ خود میں سمٹتی بیڈ شیٹ کو بھی اپنی مٹھیوں میں بھیج رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اپنی بے بسی محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں رکے آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ غازیان جیسے ہی اس کے نزدیک پہنچا وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے کی طرف کھسکی۔ میں تمہیں فی الحال کچھ نہیں کہہ رہا، اس لیے ڈرو نہیں، لیکن تمہیں یہاں جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے وہ تم یقیناً جان گئی ہوگی، تو ہمارے ساتھ تعاون کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ابھی ایک ڈاکٹر آ رہی ہے، وہ تمہاری مرہم پٹی کر دے گی۔ غازیان خان زادہ اس معصوم شکل و صورت کی حامل لڑکی پر زیادہ دیر نظر نہ رکھ سکا۔ وہ عجیب سی مقناطیسیت رکھتی تھی۔ اپنے اندر نہ بولنے کے باوجود غازیان کے دل کا ایک کونا پتہ نہیں کیوں اس کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ غازیان اپنی بات کہتے ساتھ ہی جلدی سے وہاں سے پلٹتا چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی لڑکی اپنی ٹانگوں کے گرد اپنا بازو لپیٹ کر گھٹنوں میں سر چھپاتی بلک بلک کر رو دی۔ اس کی آواز ذرا سے کھلے دروازے سے غازیان کی تیز سماعت تک پہنچی تو اس کے قدم چند پل کو رک گئے۔ وجود میں بے چینی کا عنصر پیدا ہوا تو وہ اپنی اس کیفیت پر جھنجھلاتا ہوا اپنے قدموں کی رفتار تیز کر گیا۔ لیڈی گارڈ نے غازیان کو اس لڑکی کا نام میرب بتایا، اور اس پر ٹارچر کرنے سے یہی معلوم ہو سکا تھا کہ وہ بس اپنی ماں کے کالے کارناموں کے بارے میں علم رکھتی ہے، اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ لیڈی گارڈ کی دی ہوئی معلومات پر غازیان اثبات میں سر ہلاتے گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ بھی یہی اندازہ لگا سکا تھا کہ وہ اس کے بعد لڑکی کو اپنے پاس رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس نے پرسوچ انداز میں اپنی پیشانی کو شہادت کی انگلی سے چھوا اور اپنے ملازم کو لڑکی واپس چھوڑ آنے کو کہا۔ اسے اپنی جلد بازی پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ خام خواہ وہ پرنسپل کو سزا دینے کے چکر میں اس معصوم لڑکی کو گھسیٹ لایا تھا، لیکن غازیان خان زادہ کا دماغ اس وقت گھوم کر رہ گیا تھا جب میرب نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ تب وہ اسے تل ملاتے ہوئے اس کے سر پر جا پہنچا۔ اب تو اس کی حالت کافی بہتر تھی۔ غازیان کو اپنے سامنے وہ موم کی گڑیا معلوم ہوتی تھی، اور پھر اس کے سرخ اور سفید چہرے پر اس کی شہد رنگ آنکھیں آسانی سے بھی کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ بلا کی کشش رکھتی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں نہیں واپس جانا چاہتی؟ غازیان اس کے پاس آتے اونچی آواز میں بولا تو وہ سہمے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے نظریں جھکا گئی۔ میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا، اس لیے اٹھو، ابھی تم یہاں سے جا رہی ہو۔
तुम्हारी माँ को सजा देने का मैं कोई और तरीका ढूंढूंगा। अब वो किसी तौर भी मुझसे नहीं बच सकती। नाज़ियान अपनी बात कहते मीरब का बेड से उठने का मुंतजिर था, लेकिन वो टस से मस ना हुई, जिस पर गाजियान को गुस्सा आने लगा कि शायद वो गूंगी के साथ साथ बहरी भी है। गाजियान ने उसके सामने चुटकी बजाते उसे उठने का इशारा किया, तो वो रोने के साथ अपने हाथों को नाव में हिलाती गाजियान को इशारे से कहने की कोशिश करने लगी कि वो यही रहेगी, साथ कुछ दिन का इशारा भी कर रही थी। गाजियान को उस लड़की की साइकी समझ नहीं आई, जो अपनी माँ के पास अपने घर जाने को ही तैयार ना थी। गाजियान ने थोड़ी देर के लिए उस लड़की के रोने की वजह से सुर्ख होते चेहरे और फिर हाथों की हरकतों को देखते मस्मराइज हुआ। वो नहीं जानता था कि कोई लड़की होठों से ना बोलते हुए इतनी खूबसूरत भी लग सकती है। गाजियान को नजर हटाना मुश्किल लगने लगा। वो मजीद कोई और बात किए पलटा और तेज रफ्तारी से कमरे से निकल गया। वो छोटी सी लड़की खुद को पत्थर दिल समझने वाले गाजियान खानजादा के दिल पर पानी के एक एक कतरे की तरह गिरती उस पत्थर में शिगाफ डाल रही थी। गाजियान खानजादा ने दोबारा मीरब के सामने से खुद को बचा कर रखने के लिए बेहद काम में मसरूफ कर लिया। वो अपने इस घर में रात को भी कम आने लगा, लेकिन उसके साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता प्रिंसिपल के गिर्द जाल फैलाता रहा और जल्द ही उस पर काबू पाने के लिए कोशा था। गाजियान खानजादा ने उस प्रिंसिपल को अभी अपने कॉलेज से नहीं निकाला था, बल्कि वो उसके सामने पहले ही की तरह खुद को पेश करता और उसके जराइम के जड़ों तक पहुंचने का इरादा करता था। मीरब के अगवाकारों के बारे में भी वो नहीं जानती थी कि वो गाजियान के कब्जे में है, जिसकी दौलत गाजियान खानजादा खुफिया तौर पर अपना नाम सामने लाए बगैर उसे टॉर्चर करने और अपना जुर्म कबूल करने पर अकसा रहा था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो उसकी बेटी को जान से मार देने की धमकी दे गया। लेकिन कॉलेज की प्रिंसिपल उसकी सोच से ज्यादा मक्कार और खुद गर्ज थी। वो बस दिखावे को अपनी बेटी के बचाव की मिन्नतें करती थी, लेकिन अपने गुनाहों से पीछे हटने को तैयार न थी, जिससे साबित होता था कि उसे अपनी सगी बेटी की जान और इज्जत से कोई सरोकार नहीं। वो बुरी तरह बुराई की दलदल में फंस चुकी थी, जिसकी स्याही ने उस औरत को कुछ भी समझने के लायक न छोड़ा। गाजियान खानजादा 2 दिन बाद अपने महलनुमा घर में आया, जब गाड़ी से निकलते ही उसकी नज़र सरसब्ज रंग बिरंगे फूलों से भरे लॉन के दरमियान मीरब पर पड़ी। दोनों की नजरें दूर से ही एक दूसरे से मिली। मीरब की तवज्जो जैसे ही उसकी तरफ हुई, गाजियान खानजादा घर के अंदर कदम बढ़ा गया। गाजियान का अंदाज कुछ घबराया हुआ सा था, जिस पर उसका दिल खुद पर लानत भेजने को चाहा कि वो एक गूंगी और कम उम्र लड़की से डर कर भाग रहा है, जो इस घर में उसके रहमो करम पर है। अब तो वक्त के साथ साथ उसका प्रिंसिपल की बेटी को अगवा करने का पछतावा बढ़ता ही जा रहा था, जो उसकी वीरान और बेरौनक सी जिंदगी को शायद उलट पुलट करने की तैयारियों में थी। गाजियान, जो नाक की सीध में चलता अपने ही रूम में जाने वाला था, अपने पीछे किसी के धीमे कदमों की चाप महसूस करते उसके आगे बढ़ते कदम और उनकी रफ्तार ना चाहते हुए भी सुस्त पड़ी थी। और फिर उसे मीरब के अपने मुकाबले आ जाने पर रुकना पड़ा। वो गहरी सांस भरते हुए उसे देखने से इज्तनाब करता इधर उधर देखने लगा, लेकिन मजबूरी थी। मीरब के यूं अपने सामने आने का मकसद समझने के लिए उसे अब उसकी तरफ देखना जरूरी था। वो उसे पूरी तवज्जो से देखना था, क्योंकि उसके परेशान और उसके इशारों को समझने के लिए यही लाजिम था। इसके अलावा कोई चारा भी ना था। मजबूरन गाजियान खानजादा को नज़र उसके कोमल वजूद पर टिकानी पड़ी, लेकिन उस नज़र में अजीब खुमारी छाई थी। वो बस उसके हाथों और उसके चेहरे के बदलते तासुरात को देखकर इस कदर महव हो गया कि उसे आसपास का कोई भी होश न रहा। इस दौरान उसकी बात उसे जरा भी समझ न आ सकी। वैसे भी इतनी आसानी से किसी ना बोलने वाली बात का समझना गाजियान खानजादा के लिए आसान नहीं था। उसका जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे इंसान से वास्ता पड़ा था। साहब जी, साहब जी। गाजियान खानजादा से न जाने कब तक खड़ा मीरब को तकता कि मुलाजमा की आवाज ने उसे होश की दुनिया में लापटका। वो कुछ हड़बड़ा सा गया। क्या है? गाजियान ने एक नज़र मीरब को देखते मुलाजमा की तरफ तवज्जो दी। मीरब की सवालिया नजरें उसी पर थी कि आया उसे उसकी बात समझ आई है या नहीं। साहब जी, आपके लिए चाय लाऊं या फिर कॉफी लाऊं? मुलाजमा ने नजरें झुकाए हुए पूछा। कुछ भी नहीं, और इससे कहो कि जो भी कहना है लिख कर दे दे और तुम मुझ तक पहुंचा देना। गाजियान खानजादा ने मीरब की सवालिया नजरों को समझा
और मुलाजमा को हुक्म देता आगे बढ़ गया। उसे यही बेहतर हल लगा था। गाजियान खानजादा आगे बढ़ा तो मीरब ने उसकी चूड़ी पुष्ट को घोरा, क्योंकि उसने गाजियान को अपनी बात समझाने की कितनी कोशिश की थी, और वो भरपूर मुतवज्जो भी था, जैसे उसे सब समझ आ रहा था। मीरब ने अपने होंठ भींचे और सोचने लगी कि अगर उसे समझ नहीं आ रहा था तो उसने मुझे टोका क्यों नहीं, और जब वो अपनी बात मुकम्मल कर चुकी थी तो नया हुक्म सादिर करके चलता बना। अजीब इंसान है। मीरब आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाती हुई मुलाजमा के पीछे चल पड़ी। गाजियान ने पहले चंद पल अपने सामने मौजूद मीरब की लिखी तहरीर को देखा, फिर उसे पढ़ने लगा। यहाँ उसने सबसे पहले गाजियान खानजादा के खुद के साथ नरमी बरतने और अपनी जगह घर देने पर शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर उसने अपनी माँ का जिक्र किया, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि वो अपनी माँ को ज्यादा पसंद नहीं करती। ये सोचते न जाने क्यों गाजियान को अच्छा लगा कि वो लड़की अपनी माँ जैसी नहीं है और अपने माँ के अमालों को अच्छी तरह जानती है। दिल में कहीं सुकून सा भरने लगा। गाजियान ने जल्दी से सर झटकते सफ़े पर मौजूद अगले जुमलों पर नजर की। मीरब चाहती थी कि मीरब का गाजियान खानजादा के पास होने के बारे में उसकी माँ को अगर पता है तो गाजियान उसकी माँ के सामने ये हरगिज जाहिर न करे कि वो यहाँ बहुत अच्छे से रह रही है। मीरब बखूबी जानती थी कि मीरब के होने या ना होने से उसकी माँ को रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हजारों डर और खौफ मीरब के अंदर मौजूद थे। अगर उसकी माँ को जरा सी भी ये भनक लग जाती कि वो गाजियान खानजादा के पास अपनी मर्जी से रह रही है, तो उसकी माँ कुछ भी कर सकती थी। आखिरी हद पार करना भी उसकी माँ के लिए मुश्किल नहीं था। वो शायद मीरब को मारने से भी दरेक न करती, लेकिन मीरब को फुल वक्त अपनी जान से ज्यादा किसी और की जान अजीज थी, जिसके बारे में सोचते मीरब की आंखें आंसू बहाने लगती और दिल बेचैनी से भरने लगता। न जाने उसके वहां ना होने से वो हस्ती किस हाल में होगी। नीरब ने गाजियान खानजादा से इल्तिजा की कि वो उसकी माँ को उसके गुनाहों के साथ पकड़े और जल्द अज जल्द कानून के हवाले कर दे, ताकि उसकी तबाही फैलाते कदम वहीं रुक जाए। वो दिल से चाहती थी कि उसकी माँ को उसके अमालों की सजा जरूर मिले। गाजियान खानजादा का दिल मीरब के लिए मजीद गुदास होने लगा। वो छोटी सी लड़की अपनी सगी माँ के होते हुए भी कैसी जिंदगी गुजार रही थी। गाजियान के दिलो दिमाग में कॉलेज की प्रिंसिपल के लिए गुस्सा और तैश बढ़ने लगा। वो ऐसी बुरी औरत के तौर पर उसके सामने खिली थी कि वो सोच भी नहीं सकता था। वो औरत अपनी सगी बेटी के लिए भी अच्छी साबित ना हुई थी। गाजियान खान ज्यादा चेहरे पर असली संजीदगी तारी किए सुस्त रवि का शिकार होता अपने कमरे की खुली खिड़की में आ खड़ा हुआ, और एक बार फिर से मीरब उसकी नजरों के सामने थी। मीरब का इस तरह इस घर में बेखौफो खतर और एक इस्तेहाक के साथ चलना और गाजियान खानजादा को पता नहीं बहुत भला लगने लगा था। वो फूलों की झुरमट में खड़ी उन्हीं का ही एक हिस्सा मालूम होती थी। गाजियान खानजादा आंखों में प्यार की रमक लिए उसे देखता ही चला गया। अब की बार उसकी आंखों को और दिल को खुली छूट थी। जैसे ही मीरब ने खुद पर किसी की नजरों का इत्तेकाज महसूस किया, चौंकते हुए इधर उधर देखने लगी, और फिर कुछ फासले पर मौजूद खिड़की में खड़े गाजियान खानजादा की नजरों का हसार खुद को महसूस करते उसका दिल भी एक बार की धड़का। वो ज्यादा देर तो वहां ठहर न सकी और अपने कंधों पर मौजूद दुपट्टे के पल्लुओं को दोनों हाथों में दबोचती गाजियान की नजरों से ओझल हो गई। मीरब का इस तरह अपनी नजरों से छुपना गाजियान के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट बखेर गया। वो लड़की गाजियान की बदलती नजरों को बखूबी समझ गई थी। गाजियान खानजादा ने अब तक 27 साल जिंदगी बहुत ही खुश गुजारी थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। वो बहुत जल्दी किसी से न घुल मिल पाता, जिसकी वजह से उसके दोस्त भी बहुत कम थे। उसके इर्द गिर्द हमेशा खूबसूरत और तरहदार सी लड़कियां मंडलाती रहती थी, जिनकी मौजूदगी उसे हमेशा खौफ में मुब्तला करती। उसके माँ बाप उस पर शादी के लिए जोर दे रहे थे, लेकिन कोई फैसला न कर पा रहा था। वो नहीं जानता था इस तरह अचानक से एक अनजान लड़की उसकी जिंदगी में आएगी और उससे उसकी जिंदगी का एक बड़ा फैसला करवाएगी। वो अब अपने माँ बाप का मुंतजिर था, जो कुछ अरसे के लिए दोनों एक साथ वर्ल्ड टूर पर गए थे। वो उन्हें बस अपनी पसंद से आगाही देने वाला था, लेकिन उसके वालिदैन के साथ साथ अभी उसे कुछ अरसा इंतजार करना था, क्योंकि उसकी पसंद करदा लड़की काफी कम उम्र थी। वो उसके 18 साल के होने के बाद ही उसे अपनी पसंद के बारे में बताने के साथ जिंदगी में शामिल करने का इरादा रखता था। गाजियान खानजादा वक्ती तौर पर सब कुछ भूल गया, बस अपने मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाने में मगन था।
गाजियान अब पुलिस ऑफिसर असद के साथ मिलकर कॉलेज की प्रिंसिपल के गिर्द घेरा तंग कर रहा था। जिस तरह वो कॉलेज के बच्चों को कॉलेज से बाहर गुमराह करते हुए अपने घिनौने मकसद हासिल कर रही थी, बिल्कुल इसी तरह गाजियान खानजादा और पुलिस अफसर असद उसका ताक़ुब करते हुए इस जराये में मुलविस सारे ग्रुप को गिरफ्त कर लेना चाहते थे, ताकि माशरे में फैलाए उनकी गंद को अच्छी तरह से साफ कर सके। इन सब में जितनी जल्दी गाजियान खानजादा और पुलिस अफसर असद को थी, उससे ज्यादा बेचैनी मीरब को मालूम होती। वो गुजरते दिनों के साथ परेशान सी रहने लगी थी। कई बार हाथों की उंगली आपस में उलझाए वो गाजियान के सामने सवालिया नजरों से पहुंच जाती, और तब गाजियान खानजादा उसको अपनी माँ को सजा दिलवाने के लिए परेशानी देखता तो हैरान होने लगता। मगर कुछ ही लम्हों में वो मीरब की बात समझने और उसे भरपूर तवज्जो से नवाजने के बावजूद जब ना समझने का बहाना करते हुए उसे अपनी बात लिखकर कहने को कहता, तब मीरब झिंझला जाती। ऐसा होने पर वो हर बार खुद को निपटती कि पहले ही गाजियान को अपनी बात लिखकर क्यों नहीं देती, लेकिन कहीं दिल में शायद मीरब भी जानने लगी थी कि वो बस उसे तंग करने को ऐसा कर रहा है, वरना बात तो वो उसके हिलते लबों से ही जानने लगा था। गाजियान का तंग करना मीरब के दिल को भी अच्छा लगने लगा। चाहे जाने का एहसास मीरब को खुश करने लगा था। गाजियान का इंतजार खत्म हुआ और आज उसके वालिदैन पाकिस्तान पहुंच चुके थे। गाजियान उन्हें खुद एयरपोर्ट लेने जा रहा था। घर में मामूल से ज्यादा चहल पहल थी। मीरब काफी चौंक गई, और जब उसे पता चला कि आज गाजियान के वालिदैन आ रहे हैं, तो फितरी तौर पर बहुत ज्यादा घबरा गई, ये सोचते हुए कि न जाने एक अनजान लड़की को इस तरह अपने घर में देखकर उनका कैसा रद्द अमल होगा। और फिर गाजियान की कुछ खास निगाहें जिनमें रहना मीरब को एक हसीन वादी में ले जाता था। अगर उसके वालिदैन उसे नापसंद कर देते हैं तो पता नहीं मीरब का क्या होगा। मीरब का दिल नाखुशगवारी से धड़का था, मगर फिर वो बार बार सर झटकते खुद को बावर करवाने लगी कि वो एक गूंगी लड़की है। भला कौन से वालिदैन अपने खूबरू और वजाहत से भरपूर बेटे के लिए एक गूंगी लड़की को पसंद करेंगे। इसलिए वो पहले ही हकीकत पसंद थी। इसीलिए अब वो खुद को गाजियान के वालिदैन की नापसंदगी के लिए तैयार करने लगी थी। ऐसा ऐसा उसके चेहरे पर एक तासी मुस्कुराहट फैल गई, जैसे उसकी माँ के अमाल थे। उनको देखते ही कोई भी मीरब को एक अच्छी लड़की नहीं समझ सकता था। यकीनन सबके सामने अपनी माँ की बदौलत वो एक सवालिया निशान बन गई थी। आया कि वो अपनी माँ जैसी है या उससे मुख्तलिफ है। मीरब हर वक्त गाजियान के घर के रौन में मौजूद रहती। आज उसके वालिदैन की आमद का सुनते ही वो खुद को हकीकत की दुनिया दिखा रही थी। उसके बाद शाम से रात हुई तो मामूल के मुताबिक मुलाजिमा उसका खाना खामोशी से उसके पास रखते हुए वहां से चली गई। मीरा तो कब से लाशऊरी तौर पर गाजियान खानजादा को अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए बुलावे की मुंतजिर थी। अब चेहरे पर संजीदगी लिए हर सोच को झटकते सामने पड़ा खाना बेदिली से खाने लगी। खाना खाने के बाद वो जल्दी से सोने के लिए लेट गई, ताकि दिल पर आहिस्ता आहिस्ता हावी होता गम कम कर सके। लेकिन जब काफी देर करवट बदलने पर भी नींद न आई, तो वो गहरी सांस भरते बेड से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। वो धीमे कदमों से चलती हुई लाउंज की सिमत आ गई। यहाँ से बातें करने की कुछ ऊंची आवाजें आ रही थी। यकीनन गाजियान अपने वालिदैन के साथ मौजूद था। वो तजस्सुस से उन्हें देखने के लिए उस तरह एक तरफ जाकर खड़ी हो गई कि उनकी नजर उस पर ना पड़े। वो पहले आंखों में एक हसरत लिए इस छोटी सी फैमिली को एक साथ बैठा देखने लगी। उसका ध्यान उस बातों की तरफ बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे ही गाजियान खानजादा की माँ की गुस्सा भरी आवाज पूरे लाउंज में गूंजी, तो वो बुरी तरह से चौंकते हुए उनकी बातें समझने की कोशिश करने लगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों से आंसू निकलते गालों पर बहते चले गए। गाजियान खानजादा की माँ की नखवत से मीरब का जिक्र करती एन मीरब की सोच के मुताबिक अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर रही थी। उन्हें एक गूंगी और ऐसी लड़की बहू के तौर पर हरगिज कबूल नहीं थी, जिसकी माँ बहुत जल्द अपने बुरे कर्मों की बदौलत जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली थी। और अगर अपने बेटे की पसंद को देखते हाँ कर भी देती, लेकिन उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों की खुली जबानें आखिर वो कैसे बंद करवाती। ये सब सुनते ही मीरब वहाँ मजीद न ठहर सकी और रोते हुए फिर से अपने कमरे में आ गई। इस वक्त उसे अपनी माँ से ढेर नफरत महसूस हो रही थी, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसे जिंदगी की बहुत सी खुशियों से महरूम कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ गाजियान ने एक शिकायती नज़र अपने बाप पर डाली, जिन्होंने मीरब की माँ के हवाले से उसकी बताई हुई बातें उसकी माँ को बता दी थी। तो उन्होंने भी जल्दी से नफी में सर हिलाते हुए कहा,
कि वो खुद ही उनकी बातें सुन चुकी थी। गाजिया खानजादा के चेहरे पर दुख और गुस्से के तासुरात बेक वक्त उभरने लगे। वो अपने वालदेन के आने पर जितना खुश था, अब उतना ही गमज़दा लग रहा था। उसकी सारी खुशी खत्म हो चुकी थी। देखिए, मुझे अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर मेरा पसंद है, लेकिन अगर आप उसे कबूल नहीं कर रहे तो मैं पीछे हट जाता हूँ। मगर उसके बाद फिर कभी भी मुझे शादी के लिए फोर्स मत कीजिएगा। गाजियान दो टोक अंदाज में इख्तियार करता अपनी बात कहते हुए अपनी माँ को हका बका छोड़े लाउन से निकलता चला गया। गजब खुदा का, कैसे वो गूंगी लड़की चंद दिनों में अपने बेटे को पागल कर चुकी है। लगता है वो बस कहने को ही कम उम्र है। वैसे भी इतनी बदफितरत माँ की बेटी कैसे अच्छी हो सकती है। कोई ना कोई गुण तो उसमें अपनी माँ जैसा ही होगा। गाजियान की माँ का लहजा नफरत से भरा था, जिस पर गाजियान का बाप ताज्जुब से नफी में सर हिलाने लगा। ये जरूरी नहीं कि औलाद वालदैन जैसी हो। तुम होश से काम लो, क्योंकि तुम अपने बेटे की जिद को अच्छी तरह जानती हो। गाजियान के वालिद साहब ने उन्हें अकल देनी चाहिए, लेकिन वो फिलहाल कुछ समझने को तैयार नहीं थी। अगली सुबह मीरत नाश्ते के बाद रोने की वजह से सूजी आंखों के साथ अपने कमरे की खिड़की में उदास दिल लिए खड़ी थी। जब अचानक से कमरे का दरवाजा खोलते कोई अंदर दाखिल हुआ, तो मीरब ने गर्दन मोड़ते हुए आने वाले को देखा। सामने एक खूबसूरत सी औरत को देखते वो जल्दी से पूरी की पूरी मुड़कर सीधी खड़ी हो गई। एकदम से वो नर्वसपन का शिकार होने लगी। वजूद भी कुछ लरस सा रहा था, जिसकी वजह से सामने मौजूद गाजियान की माँ उसकी एक्सरे करती नजरें थी। कुछ देर के बाद वो बेड पर जा बैठी, जबकि मीरब ने यूं सर झुका लिया जैसे उससे कोई गलती हो गई हो, जिसकी अभी उसे सजा मिलने वाली है। देखो लड़की, मैं मानती हूँ तुम खूबसूरत हो, लेकिन जिंदगी सिर्फ खूबसूरती के सहारे तो नहीं गुजरती, और फिर बहुत सी चीजें अहमियत रखती हैं। मेरे बेटे पर तुम्हारी खूबसूरती ने कुछ ज्यादा ही असर कर दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने तुम्हें यहाँ जिस मकसद से ठहराया है, वो पूरा होते ही इस घर से और उसकी जिंदगी से चली जाना जैसे कभी आई ही ना हो। और यही तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। नाजिया खानजादा की माँ तनफ्फुर से अपनी बात मुकम्मल करती कमरे से जा चुकी थी। मीरब ने अपना झुका सर ऊपर किया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसके बाद गाजियान और मीरब का सामना न हुआ, लेकिन जब मीरब की माँ को तमाम सबूतों के साथ पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, तो वो उसे बताने के लिए काफी दिनों के बाद उसके सामने आया था। गाजियान दिल ही दिल में मीरब से शर्मिंदा सा था। बेशक दोनों में कोई पसंदीदगी का बाकायदा इजहार न हुआ था, लेकिन वो दोनों ही बस आंखों से एक दूसरे के दिल का हाल जानने लगे थे। पिछले कुछ दिनों से मीरब का कमरे से ना निकलना गाजियान को बार बार बावर करा रहा था, और वो घर में चलती कशीदगी को काफी हद तक जान चुकी है। गाजियान ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, उसके हाथ में मौजूद फोन पर पुलिस अफसर असद की कॉल आने लगी। तो वो पहले फोन कॉल से लगाया और यहाँ पुलिस अफसर असद की मालूमात पर हैरान और परेशान रह गया। लेकिन फिर नफरत और गुस्से से उसने सर को झटका। पुलिस अफसर ने बताया कि प्रिंसिपल के घर में उसके बीमार शोहर को देखा गया है, जो कि अब हॉस्पिटल में है। उसका मतलब था प्रिंसिपल ने हर तरफ अपनी बेवा होने की झूठी खबर फैलाई थी। पता नहीं वो पत्थर दिल औरत किस किस के साथ क्या क्या करती थी। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारी माँ पुलिस की कैद में है और तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में। गाजियान ने बाप का जिक्र किसी तंज की तरह किया, क्योंकि उसे बुरा लगा था कि मीरब ने उससे ये बात छुपाई थी। अपने बाप के जिक्र पर मीरब तड़प उठी। उसने जल्दी से खुद को अपने बाप के पास ले जाने को कहा, तो गाजियान खानजादा उसे अपने पीछे आने का कहता चलकर वहां से चल दिया। उसे खुद भी हॉस्पिटल ले जाने वाला था। दोनों आगे पीछे चलते जैसे ही लाउंज में आए, वहां सोफे पर बैठी गाजियान की माँ को टीवी देखने में मसरूफ पाया। वो चैनल सर्चिंग कर रही थी। जब एक न्यूज चैनल पर चलती खबर सुनते वो रुक गई। वहीं कुछ देर के लिए गाजियान और मीरब के कदमों की रफ्तार भी धीमी पड़ी। न्यूज चैनल पर मीरब की माँ के सारे जुराइम के साथ अपने शोहर को कैद में रखने के बारे में तफसील से बताया जा रहा था, और हर खबर पर गाजियान की माँ के चेहरे पर नफरत बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कुछ फासले पर खड़े गाजियान की मौजूदगी महसूस की, तो उसकी तरफ एक जताती नजर डाली। साथ ही वो मीरब को घूरना न भूली, जो सुन होते दिमाग के साथ वहाँ साकित से खड़ी थी। गाजियान की माँ की नागवारी को सर झटकते चैनल तब्दील करने लगी, तो गाजियान ताज्जुब से नफी में सर हिलाते आगे बढ़ गया। जब मुझे पीछे से अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, सारा मामला निमट गया है, तो यहाँ इस लड़की को लेकर जा रहे हो, वहीं छोड़ आना, क्योंकि मुझे अपने प्यारों की जिंदगी बहुत अजीज है।
ان کی آواز میں چھپا طنز غازیان اور میرب دونوں بخوبی جانتے تھے۔ غازیان چونکہ اپنی ماں سے ناراض تھا، اسی لیے ان کی بات پر بغیر کچھ بولے بس وہاں سے لب نیچے چلا گیا۔ میرب بے چان قدموں سے خود کو گھسیٹتی آہستہ آہستہ باہر نکل آئی۔ دل و دماغ پر سوگواریت جاری تھی۔ اس نے ایک حسرت بھری نظر ہر طرف ڈالی۔ یہ گھر اور اس کی خوشیاں اس کے مقدر میں نہیں تھی۔ وہ شاید پیدا ہی بدقسمت ہوئی تھی اور اب اسے بدقسمتی کے ساتھ ساتھ سمجھوتا بھی کرنا تھا۔ اس نے گہرے سانس بھرے اور خود کے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ بے شک ابھی 16 سال کی تھی، لیکن وقت کی تلخیوں نے اسے بہت پہلے ہی کافی سمجھدار اور بڑا کر دیا تھا۔ عام لڑکیوں کی طرح اسے تو اپنا بچپن بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کیسا گزرا تھا۔ ہر وقت بس ڈرے سہمے رہتی اور کھول میں سمٹی رہتی تھی۔ اس کی ماں کی نظروں کے سامنے اس کے باپ پر ظلم ڈھاتی تھی اور اسے اپنی زبان بند رکھنے کے لیے مجبور کرتی تھی، اور اگر کبھی وہ اپنی ماں کے سامنے زبان کھولتی تو وہ آگے سے اس پر ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کو بھی اور زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ اور تب سے ہی میرب کو اپنی ماں سے نفرت تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ایسا کفل چڑھایا کہ وہ سچ میں خود کو گونگا تصور کرنے لگی۔ اس کی ماں نے اس کے دماغ میں اتنا زیادہ ڈر بٹھایا اور اسے دھمکیاں دی کہ اگر اس نے کبھی کسی کے سامنے زبان کھولی تو وہ اس کی زبان سچ میں کاٹ دے گی اور اس کے باپ کو بھی جان سے مار دے گی، جو کہ میرب کو کسی صورت بھی قبول نہ تھا۔ ایک وہی تو تھا اس بڑی دنیا میں جو اس کو پیار کرتا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے، اور یہی وجہ تھی کہ غازیان خان زادہ کے گھر میں بھی میرب اتنی پریشان رہتی تھی کہ کہیں اس کی ماں یہ نہ جان جائے کہ وہ غازیان کے قبضے میں ہے اور یہاں اپنی مرضی سے رہ رہی ہے، ورنہ وہ اس کے باپ کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرتی۔ اور اب جب اس کی ماں اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی اور اس کا باپ زندہ ہاسپٹل میں موجود تھا، تو اس نے ان کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی تھی اور خود کو مضبوط کرنا تھا۔ غازیان خان زادہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ میرب بھی گہری سوچوں میں گم تھی اور اپنی آنے والی زندگی کو لے کر مختلف فیصلے کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر غازیان کو دیکھا اور افسردہ سی آہ بھری۔ کاش غازیان خان زادہ اسے آسانی سے مل جاتا، لیکن اپنی عزت نفس مجروح کرتے ہوئے وہ غازیان کو حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی پھر ساری زندگی اس کی ماں کی نفرت سہ سکتی تھی۔ یقیناً اس سب سے غازیان بھی کبھی خوش نہ رہ پاتا۔ میرب کو پیچھے قدم موڑنے تھے، دل میں تھا جب وہ نہیں ہوگی تو کچھ ہی عرصے میں غازیان اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا۔ ہاسپٹل میں میرب اپنے باپ سے ملتی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ وہ دونوں ہی کچھ وقت کے لیے کچھ فاصلے پر کھڑے غازیان کو بھول چکے تھے۔ غازیان نے بھی انہیں اکیلا چھوڑ دیا اور باہر نکل آیا۔ میرب کے بابا ابھی کچھ دن ہاسپٹل میں رہنا تھا۔ جب وہ دوا لینے کے لیے نیند میں چلے گئے تب غازیان نے میرب کو واپسی کے لیے کہا تو اس نے یہ اشارہ کرتے ہوئے جانے سے انکار کر دیا کہ وہ ابھی یہیں رہنا چاہتی ہے۔ غازیان کے بار بار کہنے پر بھی وہ جانے کے لیے نہ مانی تو غازیان نے اصرار نہ کیا اور اکیلا ہی واپس آ گیا، لیکن اس نے اپنے خاص ملازم کو میرب کے بابا کے کمرے سے باہر رہنے کو کہا تاکہ کسی بھی ضرورت کے وقت وہ اسے بلا سکے۔ میرب اس بات سے انجان تھی۔ 2 دن بعد وہ جیسے ہی میرب کے بابا کی طبیعت میں کچھ سدھار آیا تو میرب اسے ہاسپٹل اور شہر سے دور جانے کا فیصلہ کیا۔ ان 2 دنوں میں غازیان دن میں 2 بار صبح اور شام ہاسپٹل کا چکر لازمی لگاتا، اس لیے میرب نے ہاسپٹل سے جانے کے لیے دوپہر کا وقت چنا، اور پھر جیسے ہی میرب اپنے بابا کے ساتھ ہاسپٹل سے نکل آئی اور کسی ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ بابا، جب تک ٹیکسی یا پھر کوئی رکشہ نہیں ملتا تب تک آپ وہاں بیٹھ جائیں، اس طرح کھڑے کھڑے تھک جائیں گے۔ میرب سڑک کنارے اپنے بابا کا بازو پکڑے کھڑی تھی اور اس کے بولنے کے لیے ہلتے ہونٹ وہاں گاڑی روکتے غازیان نے بخوبی دیکھے، جس پر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا، کیونکہ میرب کے ہاسپٹل سے نکلتے ہی اس کا ملازم اسے بتا چکا تھا۔ چونکہ وہ قریبی تھا اس لیے فوراً گاڑی دوڑاتا ہاسپٹل پہنچ گیا۔ یہاں پہلے وہ میرب کے بتائے بغیر ہاسپٹل سے جانے پر حیران اور غصے میں تھا، اور اب اس کے سامنے اپنے گونگے ہونے کی ایکٹنگ کو یاد کرتے وہ دگنا اور زیادہ حیران اور غصے سے ہو رہا تھا۔ آخر اس نے غازیان کو پاگل کیوں بنایا؟ وہ معصوم اور کم عمر لڑکی اس کے ساتھ کیوں کھیل رہی تھی؟ جیسے ہی گاڑی کے ٹائر زور سے میرب کے پاس چلتے رہے وہ خوفزدہ ہوتی کئی قدم پیچھے ہٹ گئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر غازیان پر پڑی تو اس کا چہرہ مزید سفید پڑا۔ وہ اسے دیکھتے ہی جان گئی تھی کہ وہ تیش سے بھرا ہے۔ کہاں جانا ہے مجھے بتا دیتے، میں چھوڑ دیتا۔
गाजियान ने बमुश्किल खुद को काबू पाया। मीरब किसी हद तक अपने बाबा को गाजियान के बारे में बता चुकी थी, सिवाय गाजियान की पसंदीदगी के। वो बेटा, मीरब के बाबा को समझ न आई कि वो क्या बोले, जबकि मीरब बस लब भींचते हुए सर झुकाए खड़ी थी। मेरे साथ आ जाए। गाजियान ने उनकी बात को मुकम्मल होने का इंतजार किए बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो मीरब ने बेसाख्ता निगाहें ऊपर करके इनकार करना चाहा, लेकिन गाजियान को पहले से ही खुद की तरफ देखता पाकर उसके चेहरे के सख्त तासुरात देखते उसमें इनकार की हिम्मत न पड़ी। वो नाचार अपने बाबा के साथ गाड़ी में बैठ गई। दिल में अजीब सा हिजान बरपा था। वो सोच रही थी कि अब पता नहीं गाजियान उसे कहाँ ले जाएगा। उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी। क्या उन बाप बेटी के लिए इस जमीन में कोई इज्जत का ठिकाना ना रहा था? वो ऐसी ही लायानी सोचों में गुम थी। जब गाड़ी एक झटके से रुकी तो उसकी सोचें भी थमीं। उसने नजर उठाते इधर उधर देखा, लेकिन अनजान सा मंजर देखते वो चौंकी। इस जगह लंबी लंबी सी बिल्डिंग थी और एक मेन गेट पर गाड़ी रोकते गाजियान ने नीचे उतरते मीरब के बाबा की साइड का दरवाजा खोलते उन्हें सहारा दिया। वो आगे बढ़ा तो वो भी उनकी तकलीफ में बाहर निकल आई। वो हैरान हैरान से उनके पीछे चलती आ रही थी। ये अपार्टमेंट्स की इमारत थी, जिनमें से एक अपार्टमेंट में गाजियान के जरिए उन्हें लिए वो दाखिल हो गया था। और फिर देखते ही देखते कुछ घंटों बाद गाजियान ने मीरब के बाबा से बात करते अपने चंद दोस्तों और अपने पापा को बुलाने के साथ मौलवी साहब को भी वहां बुला लिया था। और फिर मीरब, जिसने गाजियान का ख्वाब देखना ही छोड़ दिया था, अब हमेशा के लिए गाजियान के नाम लिख दी गई थी। उसे इस बात पर यकीन ही ना आ रहा था कि उसका निकाह फिलहाल गाजियान की वालदा शामिल ना हुई थी, लेकिन उसके बाबा अपनी भरपूर खुशी का इजहार कर गए थे। दिल में कहीं इत्मीनान फैलने लगा कि गाजियान ने जिस तरह उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा था, उसकी कदर उसके दिल में और भी बढ़ गई थी। इस वक्त मीरब कमरे में अकेली थी। जब गाजियान अंदर आया और वो बुरी तरह नर्वस होने लगी। वजूद बाकायदा लरजने लगा। एक नज़र एक बार उठने के बाद जो झुकी तो दोबारा उठने से इनकारी हो गई। सोफे पर गाजियान उससे कुछ फासले पर आ बैठा तो मीरब बेसाख्ता पीछे को सरक गई, लेकिन सोफा दो सीटर होने की वजह से वो ज्यादा फासला न बना पाई। गाजियान ने पूरे हक से आज उस लड़की को देखा था, जो आज भी उसे पहले के जैसे ही मासूम और प्यारी लगी थी। दिल में उसके दिए धोखे के बावजूद उसकी मोहब्बत में कोई कमी ना आई थी। और उसकी माँ की बुरी असलियत जानते हुए भी पता नहीं क्यों वो उस लड़की से मोहब्बत कर बैठा था। उसका उसके साथ रहने के बावजूद अपने बाप के बारे में ना बताना और उसकी जबान रखते हुए गूंगे की अदाकारी करना, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो लड़की बुरी तरह बड़े हक से उस पर हावी थी। लेकिन वो गाजियान खानजादा के दिल को बुरी तरह अपने कब्जे में कर चुकी थी। और इसी सोच पर वो खफीफ सा मुस्कुरा दिया कि वो अपनी माँ के मीरब को लेकर इतने शकूक और शुबहात के बावजूद भी उनकी मर्जी के खिलाफ अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर गया। गाजियान बगैर कुछ बोले अपनी तरफ तकते पाकर मीरब की पलकें लरजने लगी। वो हाथों की उंगलियों को आपस में मरोड़ने लगी। वो तो उसके गुस्से की मुंतजर थी कि आखिरी बार सामना होने पर वो इतना गुस्से से भरा नजर आ रहा था, जबकि इस वक्त उसकी आंखों का वालिहाना पानी अलग था और उसका अंदाज उसकी जान निकाल रहा था। क्या तुम बताना पसंद करोगी कि तुमने मुझसे गलत बयानी क्यों की थी? आखिरकार जियान ने थोड़ा होश करते हुए सवाल जवाब की शुरुआत की। कुछ दिल भी उसकी आवाज़ सुनने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन मीरब अपनी आदत के मुताबिक जैसे ही इशारों के लिए हाथ बुलंद करने लगी तो गाजियान ने झट उसके दोनों हाथ अपने हाथ में कैद कर लिए। ऐसे नहीं। बेशक तुम्हारा ये अंदाज बहुत दिल फरेब लगता है, लेकिन अब ये गवारा नहीं कि तुम बोलने की सलाहियत रखते हुए भी गूंगा होने का नाटक करो। और अब मुझे उसकी वजाहियत चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। गाजियान के लहजे में खुफगी और शिकवा झिलका तो मीरब का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ने लगा। फिर वो पहली बार गाजियान के सामने आहिस्तगी से लब्बा करती धीमी आवाज में सब बताती चली गई, जिसे सुनते ही गाजियान को उसकी माँ से और ज्यादा नफरत महसूस हुई, जो अपनी सगी औलाद की नहीं हो सकी। आखिर में गाजियान खानजादा ने मीरब की आवाज में आंसुओं की नमी महसूस की तो बेसाख्ता उसे अपने सीने से लगा लिया और खुद को भी सुकून पहुंचाने लगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में आई तमाम महरूमियों का अजाला कर दूंगा। इंशाल्लाह तुम मेरे साथ जिंदगी की सारी खुशियां देखोगी। गाजियान ने उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया और उसकी पेशानी को छुआ। मीरा भी एक झटके से उसके पास से उठ खड़ी हुई, जिस पर गाजियान खान ज्यादा जोर से हंसा। डरो नहीं, मैं भी जा रहा हूँ। वैसे भी काफी देर हो गई है।
انکل اور بابا پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے شرمندہ ہونا پڑے، میرا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اور ہاں، 2 سال دور بھاگ لو، پھر تمہیں ہمیشہ میرے پاس آنا ہے۔ غازیان خان زادہ آخری بات سرگوشی کے انداز میں اس کے کان میں کہتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ میرا اس کی پشت کو تکتے گہرے اطمینان سے مسکرا دی تھی کہ اللہ نے اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ایسے ناول مزید سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔